Good morning, students. This is the GNM lecture, first year lecture on the topic of hygienic needs. What is meant by hygiene? Hygiene is keeping the body clean, neat to protect from the infection and give sense of well-being. हाइजीन का मतलब क्या है? बॉडी नीट क्लीन रखना. क्यों रखना है नीट क्लीन? टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द इन्फेक्शन. Okay, so this is the definition of hygiene and it is important for the exam. Next, what is the role of nurse in providing the safe, clean and hygienic environment? So the first, unit cleaning. The environment plays a wide role in promotion of health of the patient. It is duty of the nurse that she will provide the environment which is healthy, protective in nature. Okay, नर्स का जो काम है, नर्स सबसे फर्स्ट रहती है पेशेंट के पास. ओके, सो हर एक ड्यूटी में हर एक नर्स शिफ्ट वाइज चेंज हो जाती है, पर शी इज़ क्लोज टू द पेशेंट कंपेयर टू अदर हेल्थ वर्कर्स. सो इनका काम क्या है? टू गिव नीट क्लीन एनवायरनमेंट टू द पेशेंट, हेल्दी एनवायरनमेंट टू द पेशेंट. सो उसके लिए क्या करना है? यूनिट क्लीनिंग. फर्स्ट, द पेशेंट का जो बेड है एंड सराउंडिंग, जो बेड के सराउंडिंग का एनवायरनमेंट है वो क्लीन रखना. ओके, यूनिट क्लीनिंग इज द मेन इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स. शी विल do the carbolization with the antiseptic solutions during bed making and other activities which comes in contact with the patient must carbolize properly with like lockers, cardiac tables, bed, IV stand etc. जो सॉल्यूशन रहता है, डिसइंफेक्टेंट रहता है, उससे क्लीन करना है बेड during bed making and the other articles which are used by the patient. Okay, so जो बेड है, बेड लॉकर्स है, कार्डियक टेबल्स है, आईवी स्टैंड है, ये सब क्लीन करना है. किससे? डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन से. देन फिजिकल सेटअप. फिजिकल सेटअप मतलब physical setup of the patient of the unit must be proper. There must be a sufficient space between the two beds to avoid the injury due to crowding and from the cross infection. दो बेड में एक प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए to prevent from the cross infection and to prevent the injury. There must be a one chair or one table with one bed. Extra things must be removed from the unit. जो प्रॉपर यूनिट का स्ट्रक्चर है वैसे रखना है. दो बेड में प्रॉपर डिस्टेंस रखना है. वन बेड विथ वन टेबल और वन चेयर रखना है. ठीक है. नॉइज फ्री एनवायरनमेंट. सेकेंड थर्ड थिंग इज नॉइज फ्री एनवायरनमेंट देना है. टू रिड्यूस द नॉइज इन द वार्ड, रिस्ट्रिक्ट द एंट्री ऑफ मोर रिलेटिव्स. नॉइज रिड्यूस करने के लिए क्या करना है? रिस्ट्रिक्ट द एंट्री ऑफ मोर रिलेटिव्स. जो हर एक पेशेंट के साथ वन रिलेटिव्स रहना चाहिए. मोर रिलेटिव्स शुड नॉट बी अलाउड इन द वार्ड और इन द हॉस्पिटल्स. द चांस ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन आर मोर. सो इसके वजह से क्या होता है? क्रॉस इन्फेक्शन का चांसेस ज़्यादा रहता है. सो रिलेटिव्स मस्ट बी अलाउड अकॉर्डिंग टू द पॉलिसीज ऑफ द हॉस्पिटल. जो हॉस्पिटल का पॉलिसी है वैसे ही उनको अलाउ करना चाहिए. जैसे कि विजिटिंग आवर है, विजिटिंग आवर्स में ही रिलेटिव को अलाउ करना चाहिए. Then aseptic techniques. Use of the aseptic techniques if there is a no infected, is if there is an infected patient in the ward, then it is the responsibility of the nurse to keep them in isolate unit, isolation room and treat them using a aseptic technique. So aseptic technique must be used when there is an infectious patient admitted in the ward. Keep this patient in isolation room and for that patient use all the aseptic techniques. Understand? So the role of nurse during for safe, clean and नीट हाइजीनिक एनवायरनमेंट क्या रोल है? फर्स्ट तो क्राउड अलाउ नहीं करना है. देन यूनिट क्लीनिंग रखना है, फिजिकल सेटअप रखना है, नॉइज फ्री एनवायरनमेंट देना है, असेप्टिक टेक्निक प्रोवाइड करना है. ठीक है.
and fumigation must be important in OT and ICU. Okay, so the to prevent the patient from the infection, the infectious disease mostly uh, रहते हैं इन आईसीयू एंड आइसोलेशन वार्ड ओटी में. सो उधर मंथली और एज पर पॉलिसी ऑफ द हॉस्पिटल उधर फ्यूमिगेशन करना चाहिए. ठीक है. So this is the hygiene and the role of nurse for to provide the safe, clean and hygienic environment to the patient. So next हम देखेंगे the care of हर एक body part. Okay, हर एक body part की care कैसी लेनी चाहिए from eyes to foot. Okay, so first care of nose and ears. The hygienic care of eyes, nose, and ears prevent the infection and help to maintain their function. ये सब जो सेंस ऑर्गन है उनकी केयर रखनी चाहिए, हाइजीनिक केयर रखनी चाहिए टू कीप देम मेंटेन देयर फंक्शनिंग properly. The hygienic care of these organs is always done as part of general bathing procedures. ड्यूरिंग बाथिंग प्रोसीजर्स ही इनका केयर लिया जाता है. ओके, आईज, नोज एंड ईयर्स. सो पर्पजेस ऑफ दिस, why the care should be required: to maintain the cleanliness of eyes, ears and nose, to prevent from infection, to help the organ in normal functioning एंड टू प्रिवेंट द ऑब्स्ट्रक्शन. इनके जो ऑब्स्ट्रक्शन है जैसे कि कान में वैक्स जमा हो जाएगा तो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, हियरिंग प्रॉब्लम हो जाएगा, आईज के जो आईलिड्स है वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाएगा जब ये हम क्लीन नहीं करेंगे. सो जब भी पेशेंट अपने पास आता है, बेड रिडन रहता है, अनकॉन्शियस स्टेज में रहता है, वो खुद की केयर खुद नहीं रख सकता. तो ड्यूरिंग बाथिंग ये सब जो सेंस ऑर्गन है उनकी केयर रखना किसकी जवाबदारी है, किसकी जिम्मेदारी है? नर्सेस की. ओके, सो व्हाई द पर्पसेस ऑफ this caring: to maintain the cleanliness of eyes, ears and nose, and to help the organs in normal functioning, to prevent from the infection and to prevent obstructions. Okay, then during the factors affecting this for the infection of eyes, ears and nose, what are the factors? The systemic disease conditions like diabetes and hypertension. These both conditions में क्या हो जाता है, पेशेंट को इन्फेक्शन जल्दी से जल्दी हो जाता है. जैसे कि जब भी शुगर किसी फ्लोर पे गिरती है तो वहाँ पे मूंगी जल्दी से लग जाती है. ओके, क्योंकि वहाँ पे मीठा है. ओके, जैसे वैसे ही डायबिटिक पेशेंट में रहता है. डायबिटिक पेशेंट में शुगर का जो लेवल है ब्लड में और अदर जो बॉडी फ्लूइड्स है उसमें इंक्रीज हो जाता है. ओके, वहाँ उसमें स्वीटनेस आ जाता है. तो स्वीटनेस आने की वजह से क्या होता है, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जल्दी से जल्दी ग्रो कर पाते हैं. सो हम लोगों को वो पार्ट की केयर रखना बहुत ज़रूरी है जब भी पेशेंट डायबिटिक मलाइटिस का हो जाए. ओके, डीएम पेशेंट अपने पास एडमिट होता है, जब ये हाइपरटेंसिव पेशेंट अपने पास एडमिट होता है तो ये पेशेंट की जो केयरिंग है, हाइजीनिक नीड्स है, वो अच्छे से प्रोवाइड करना चाहिए. देन एक्यूट इलनेस लाइक वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी केयर रखना ज़रूरी है. So these factors are most influencing, affecting during for the infection of this sense organ. Okay, तो ये जो डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, वायरल इन्फेक्शन में ये पार्ट्स को ज़्यादातर इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं. ट्रोमा, वहाँ हेड इंजुरी रहेगी तो हेड इंजुरी में आईज में प्रॉब्लम हो सकता है, कान में ब्लीडिंग हो सकता है. तो डेली क्लीनिंग की ज़रूरत है. सो देन मेडिकेशन, सर्टन मेडिकेशन के वजह से भी वहाँ पे डर्ट जमा हो जाती है तो क्लीनलीनेस नेसेसरी है. एलर्जिक सब्सटेंस के वजह से हो जाता है, कंजेनाइटल एनोमलीज कभी कभी रहती है, उसके वजह से ये सब फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग अफेक्टिंग है फॉर द इन्फेक्शन ऑफ आईज, नोज एंड ईयर्स. ओके, देन हाउ टू क्लीन द आईज. ओके, कैसे क्लीन करना है आँखों को. इन unconscious patient are at the risk
फॉर आई इंजुरी। जो अनकॉन्शियस पेशेंट है उनको ज़्यादातर चांसेस है आँखों में इंजुरी होने का। तो डेली स्वैबिंग ऑफ द आईज विथ वेट स्टेराइल कॉटन इज इम्पॉर्टेंट। ड्यूरिंग बाथिंग ये सब प्रोसीजर्स करना है। यूज द वेट स्टेराइल कॉटन, यूज द नॉर्मल सलाइन फॉर क्लीनिंग ऑफ द आईज। हाउ टू क्लीन द आईज फ्रॉम इनर कैंथस टू आउटर कैंथस। जो इनर कैंथस है उसके बाद उधर से स्टार्ट करना है up to the outer canthus, okay, with one stroke, एक की बार, okay. Then throw that swab, then again take a new clean swab, again clean from inner canthus to outer canthus, ठीक है. So like this way clean the eyes. Clean the is done from inner to outer canthus of the eye. Use normal saline to remove the dirt, okay. Use normal saline during bath, and each eye is cleaned with the separate portion of the washing clothes. वॉशिंग क्लोथ से नहीं करना है, आप कॉटन से कर सकते हो, ठीक है. When sterile procedures is required, each eye is cleaned with the separate swab, and swabbing each once only, okay. once stroke से ही क्लीन करना है. Don't touch the inner side of the swab. Next, ear. How to clean the ear? Do not use the pins and sliders to clean the ear. जो शार्प इंस्ट्रूमेंट है वो यूज नहीं करने हैं ड्यूरिंग क्लीनिंग द ईयर्स, ओके. ओनली यूज द क्लीन बर्ड्स टू क्लीन द ईयर्स. जो बर्ड्स मार्केट में अवेलेबल है ईयर बर्ड्स, तो वो बर्ड्स से हम लोगों को ईयर क्लीन करना है. Poor hygiene of the ear, debris may accumulate behind the ear and in the anterior aspect of the external ear. जो हम लोग अच्छे से क्लीनिंग नहीं रखेंगे तो क्या हो जाता है, आँख में वैक्स जमा हो जाता है, ठीक है. Then nose. Next part is nose. Then observation of the nose for sign of discharge, lesions, edema and any deformity. First क्या करना है, first check the nose, any signs of discharge, lesions and any anomalies or abnormalities, deformities, okay. External crushed secretions can be removed. जो एक्सटर्नल सिक्रीशंस है वो अच्छे से रिमूव करना है विद द हेल्प ऑफ स्वैब. देन इन द केस ऑफ फॉरेन बॉडी इन स्मॉल चिल्ड्रन, whiffs of cotton moist with the water and oil introduced into the anterior nose and rotate gently to clean the nostril. जब भी फॉरेन मटेरियल गया रहेगा तो हम लोगों को कुछ भी नहीं करना है, आपको वो पेशेंट को डॉक्टर के पास लेके जाना है, ठीक है. सो इन दिस वे टू क्लीन ईयर्स, आईज एंड नोज, ठीक है. नेक्स्ट इज द केयर ऑफ फीट एंड नेल्स. फीट एंड नेल्स की केयर कैसी लेनी है? फीट एंड नेल्स केयर refers cleaning the feet and the nails of the individual to prevent infection. जब भी पेशेंट अनकॉन्शियस रहता है, पेशेंट बेड रिडन है, बेड से नहीं उठ सकता है, चल फिर नहीं सकता, तो नेल्स और फिट्स की केयर लेना बहुत ज़रूरी है, ओके. द फिट्स एंड द नेल्स रिक्वायर स्पेशल अटेंशन टू प्रिवेंट फ्रॉम द इन्फेक्शन, ऑर्डर एंड इंजुरी, ओके. वो कभी कभी ज़्यादा पसीना होने की वजह से फिट अपने जो पाँव है वहाँ पे ऑर्डर आ जाता है, अलग से स्मेल आ जाता है, गंदा स्मेल आता है, 2 फिंगर्स में डर्ट जमा होती है, तो उसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन हो सकता है. सो इट इज़ नेसेसरी टू कीप द केयर ऑफ फीट एंड नेल्स, ओके. द कॉमन फुट एंड नेल प्रॉब्लम्स. कॉमन फुट एंड नेल्स प्रॉब्लम्स किस में होते हैं? फाउंड इन ओल्डर अडल्ट, जो ज़्यादा बूढ़े लोग हैं उनमें दिखाई देती है. द पेशेंट विद डायबिटीज़ पेशेंट में, द पेशेंट विथ हार्ट फेल्यूर एंड रीनल डिसीज, जो हार्ट फेल्यूर के पेशेंट हैं, रीनल फेल्यूर के पेशेंट हैं, उनमें ये प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं. द पेशेंट्स हु हैड अटैक ऑफ सीवीए, जैसे कि सेरेब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट बोलते हैं इसको, तो वो पेशेंट में ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा दिखाई देते हैं. इन अनकॉन्शियस पेशेंट, द पेशेंट विथ कास्ट एंड ट्रैक्शन, जो पेशेंट को हाथ पैर को कास्ट लगाया है, तो इधर तक कास्ट लगाया है, ये नेल्स और फिंगर्स ओपन है, तो यहाँ पे
क्या होता है, डर्ट जमा हो जाती है नेल्स में, नेल्स कट नहीं कर सकते, पेशेंट को पेन होना स्टार्ट रहता है क्योंकि मूवमेंट्स ज़्यादातर नहीं रहते। सो तभी हम लोगों को क्या करना है, ये नेल्स और फिंगर्स की केयर लेना ज़रूरी है। सो मोस्ट कॉमन फुट एंड नेल्स प्रॉब्लम किस में हो जाते हैं, एक तो डायबिटीज पेशेंट है, हाइपरटेंसिव पेशेंट, रीनल फेल्योर पेशेंट, कार्डियक फेल्योर पेशेंट, सीवीए सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट में हो जाता है, बूढ़े पेशेंट में ज़्यादा दिखता है, ओके, एक्सीडेंटल ट्रोमा की इंजुरी में, और जिनको प्लास्टर कास्ट लगाया है उनको ये प्रॉब्लम्स रहते हैं, ठीक है, इन्फेक्शन ऑफ फूड्स जैसे कि एथलेंटिक फूड, ओके। सो ये सब प्रॉब्लम्स है, कॉमन प्रॉब्लम्स, उनमें फुट और नेल्स के प्रॉब्लम दिखाई देते हैं। देन टाइप्स ऑफ फुट एंड नेल प्रॉब्लम्स, ओके, हर एक टाइप से अलग अलग टाइप से टाइप्स ऑफ फुट एंड नेल प्रॉब्लम्स, ओके। इसमें फर्स्ट टाइप है कैलस, जो कि आपको ज़्यादातर किसमें आता है, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाता है। व्हाट इज मीन बाय कैलस? कैलस इट इज़ द थिकनिंग ऑफ एपिडर्मिस। इसमें क्या होता है, जो स्किन का ऊपरी लेयर है वो ज़्यादातर हार्डन हो जाता है, ओके, लाइक पत्थर, ओके, पत्थर के जैसे हार्ड हो जाता है। थिकनिंग ऑफ द एपिडर्मिस एंड कंसिस्ट ऑफ मास ऑफ हॉर्नी कैरियोटिक सेल्स, एकदम हॉर्नी मास तैयार होता है, हार्ड मास तैयार हो जाता है, okay, and the callus is usually flat, painless and found on the surface of the foot and on the palm of the hand। जो सरफेस है पाम का और फुट का, उनके ऊपर ये ज़्यादा दिखाई देता है, ओके। इट मे कॉज ड्यू टू द लोकल फ्रिक्शन और प्रेशर। जो हम लोग फुटवेयर यूज़ करते हैं उस पर ज़्यादातर फ्रिक्शन करके, जब बार बार उसमें घिसने की वजह से और ज़्यादा प्रेशर आने की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है कैलस का, ठीक है। सो नर्सिंग इंटरवेंशन इसमें क्या लेना चाहिए, नर्सिंग एक्शन क्या है, पीपल शुड यूज़ द ग्लव्स वाइल हैंडलिंग द टूल्स। जो जिनके पाम में ये प्रॉब्लम हुआ है, हाथ में प्रॉब्लम हुआ है, तो वो पीपल्स को क्या करना चाहिए, यूज़ द ग्लव्स, ओके। जो हार्ड वर्क करते हैं वर्कर्स, जैसे कि वो रेलवे प्लेटफॉर्म में काम करते हैं, बड़े बड़े जो खंभे हैं वो उठाते हैं, वहाँ पे ड्रिलिंग वगैरह करते हैं, ऐसे वर्कर्स में ये प्रॉब्लम ज़्यादातर दिखाई देता है क्योंकि हर एक मशीन से उनके हाथ का फ्रिक्शन हो जाता है। सो उससे ये प्रॉब्लम दिखाई देता है कैलस का, ओके। सो उनको क्या करना चाहिए, यूज़ ग्लव्स while handling the tools, okay। people should wear a comfortable shoes। जिनको पाँव में प्रॉब्लम हुआ है उनको क्या करना चाहिए, कंफर्टेबल शूज वेयर करना चाहिए। टू सॉफ्टन द सेल लेयर्स सोक कैलस इन वार्म वाटर। उनके जो हाथ और पैर है थोड़े देर के लिए वार्म वाटर में रखने चाहिए फॉर सॉफ्टन द स्किन, okay, and use salt for this, okay, in warm water। after it gets softened, use the permise stone and remove the callus। जो स्टोन रहता है पाव घिसने के लिए जो अवेलेबल रहता है मार्केट में, तो वो स्टोन से पैर को घिसना चाहिए आफ्टर सॉफ्टनिंग, ओके। सो ये सब नर्सिंग इंटरवेंशन है, ओके। यूज ग्लव्स while handling the instrument or tools and then आज ये सब उनको हम लोगों को क्या करना चाहिए, एडवाइस करना चाहिए जिनको ये कैलस का प्रॉब्लम हुआ है, यूज़ कंफर्टेबल शूज़ एंड उनको बोलना चाहिए कि ये जो हाथ और पैर को जहाँ पे हुआ है वो हाथ और पैर वार्म वाटर में रखें और उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालें, ओके, और रिमूव द दिस टाइप ऑफ कैलस विद द हार्ड स्टोन। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कॉर्न का, ओके। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज कॉर्न्स, ओके। जो फुट और नेल्स का प्रॉब्लम है उसमें सेकेंड प्रॉब्लम इज कॉर्न्स आर ऑल्सो कॉल्ड कैराटोसिस। इसको दूसरा नाम है कैराटोसिस, ओके। कॉर्न्स का दूसरा नाम है कैराटोसिस एंड this is caused by the friction and the pressure। It is also caused by the friction and pressure of the shoes, okay। It is mainly seen in the toes over bony prominence। जहाँ पे bony prominence है वहाँ पे ज़्यादातर ये प्रॉब्लम होता है। Corn is usually shaped and round
जो कॉर्न है वो उसको भोरी भी बोलते हैं, ओके, जो निकाली भी जाती है कट करके, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज प्लांटर वार्ड्स। Okay, the third problem of the foot is plantar wart. It is the fungal lesion appear on the sole. जो फंगल लीजन appear होता है मोस्टली मॉइस्चर के वजह से, ओके, फंगल लीजन will appear on the sole of the foot and are caused a papilloma virus. It is caused by the viral infection or fungal infection. देन इंटरवेंशन नर्सिंग एक्शन क्या है इसमें, ट्रीटमेंट में इंक्लूड एप्लीकेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड एंड इलेक्ट्रो डिसेक्शन लाइक बर्निंग विद द इलेक्ट्रिक पैक एंड देन फ्रीजिंग विद द solid carbon dioxide. This type of medicines are used for the plantar warts. Plantar warts is it is a fungal infection, okay, and it may be caused due to a पैपिलोमा वायरस से हो जाता है और फंगस से भी ये हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द एथलेट्स फुट। एथलेट फुट, ओके, एथलेट फुट्स मीन्स इट इज ऑल्सो अ फंगल इन्फेक्शन। ये भी एक फंगल इन्फेक्शन है। इन दिस कंडीशन द scallions and cracking of the skin occur between the toes and the sole of the feet. The small blisters containing fluid may occur and this problem is usually occur by wearing of the constricted footwear. जब भी हम लोग एकदम पैक बहुत छोटा वाला शूज़ यूज़ करते हैं, फुटवेयर यूज़ करते हैं, और तभी ये प्रॉब्लम हो जाता है, उसमें ब्लिस्टर्स आ जाते हैं और ज़्यादा फ्रिक्शन के वजह से उसमें फ्लूइड भी रहता है। सो उसको क्या बोलते हैं, एथलेट्स फुट्स। व्हाट आर द इंटरवेंशंस, द फीट शुड बी वेल वेंटिलेटेड। इसमें क्या करना चाहिए, जो पाँव है वो अच्छे से एयरी रखना है, वेंटिलेटेड रखना है। ड्राई द फीट विथ बाथिंग एंड अप्लाइंग अ पाउडर to prevent the infection. The wearing clean socks and stocking help to reducing the incidence. So use socks while using footwear. Next problem is ground nails. Next problem is inground nails. Inground nails, ये nails का problem है। Inground nails, the toes nails and the fingers nails grow inward. जैसे ये nails है वो inward grow हो जाते हैं, अंदर के साइड में राउंड शेप में हो जाते हैं, ओके, और अंदर स्किन में घुस जाते हैं, उसको बोलते हैं इनग्राउंड नेल्स। सो द टोज एंड द फिंगर्स नेल्स ग्रो इनवर्ड्स into the soft tissues around the nails and inground nails usually result from the improper nail trimming. जब भी ज़्यादातर कोई इंसान में ज़्यादा ट्रिमिंग नेल कटिंग नहीं हो जाता तो वो ज़्यादा ग्रो होके वो इनसाइड में वो राउंड शेप में हो जाते हैं, ठीक है। सो डेली ट्रिमिंग, हर एक वीक में ट्रिमिंग, नेल ट्रिमिंग ज़रूरी है, ओके, इन अनकॉन्शियस पेशेंट ऑल्सो। नेक्स्ट इज द पैरानोचिया। सिक्स प्रॉब्लम इज पैरानोचिया। पैरानोचिया इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द टिश्यू सराउंडिंग द नेल्स। ये नेल्स के सराउंडिंग में जो टिश्यूज है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ये ज़्यादातर डायबिटिक पेशेंट में दिखता है, ओके, बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन। सो द ट्रीटमेंट इज in hot compresses or the socks and the local application of antibiotic ointment, okay, this is the nursing intervention. Next is the foot odor, जो स्मेलिंग का प्रॉब्लम रहता है, फुट ऑडर। जिनको पाँव में ज़्यादा पसीना आ जाता है उनको ये प्रॉब्लम्स रहता है फुट ऑडर का, ओके। दे आर द रिजल्ट ऑफ द एक्सेसिव पर्सपिरेशन। जिनको ज़्यादातर
पसीना आता है पाँव में, उनको ये ऑर्डर का प्रॉब्लम रहता है, फुट ऑर्डर का। ओके, विच प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब भी ज़्यादा मॉइस्चर रहेगा वहाँ पे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो फ्रिक्वेंट वॉशिंग ऑफ द फूड with the deodorant and powder, using powder and deodorant for to protect the foot from the infection. So ये सब क्या problem है? These are the types of foot and nail problem. First है callus, then cone, then plantar warts, athlete's foot, ingrown nails, paranoia and foot odors. These are all the problems in found. Most these problems are found in the foot and nails. Okay, सो इनके लिए मैंने प्रोसीजर सीखा है, हाउ टू कट द नेल्स, नेल कटिंग का प्रोसीजर है, केयर ऑफ फूट एंड नेल्स इन बेडरिडन पेशेंट, कैसे लेना है आपको केयर। सो ये सब मैंने पढ़ाया है इन प्रैक्टिकल प्रोसीजर्स। ओके, सो नेक्स्ट इज द क्लीनिंग ऑफ द माउथ, केयर ऑफ ओरल कैविटी। केयर ऑफ ओरल कैविटी in conscious patient the procedure is different, in unconscious patient procedure is different. Understand? आप कॉन्शियस पेशेंट को उसके हाथ में ब्रश दे सकते हैं, टूथपेस्ट दे सकते हैं, वो खुद का ब्रश कर सकता है। ओके, उसको कार्डियक टेबल देना है, उनको अच्छे से बिठाना है और उनको प्रॉपर जो ब्रशिंग है वो टेक्निक करने के लिए बोलना है खुद के हाथ से। ओके, ये कॉन्शियस पेशेंट में आप कर सकते हो, बट इन अनकॉन्शियस पेशेंट जब भी अनकॉन्शियस रहेगा तो ये कौन कैरी करेगा? सिस्टर कैरी करेगी। ओके, उनके लिए अलग अलग सॉल्यूशंस यूज़ करेंगे। तो अभी जो मार्केट में अवेलेबल है ओरल सॉल्यूशन मिलता है फॉर क्लीनिंग द माउथ। ओके, जैसे कि लिस्टिल माउथ वॉश मिलता है, उससे हम लोग क्लीन कर सकते हैं माउथ। ठीक है, व्हाट आर द पर्पजेस? It is the procedure of assisting a weak and deliberated for cleaning the mouth by a mechanical brushing of the teeth and rinsing the mouth. Indication क्यों करना है आपको माउथ वॉश? माउथ ब्रेदर्स प्रिवेंट करने के लिए किसमें कर सकते हैं? जिनको ज़्यादा इंडिकेशंस क्या क्या है? माउथ ब्रीदर, जिनको मुंह से स्मेल आ रहा है, ऐसे पेशेंट में। द पेशेंट विथ नील बाय माउथ, जो पेशेंट नील बाय माउथ है। ओरल सर्जरी, इन ओरल सर्जरी पेशेंट, द पेशेंट ऑन ऑक्सीजन थेरेपी, then children under 3 years old and the patient who are unable to maintain the adequate oral hygiene. ये सब पेशेंट में हम लोगों को ओरल केयर देना है। कौन से पेशेंट में देना है? जिनको ज़्यादा मुंह का स्मेल आता हो, जो पेशेंट 3 साल से 5 साल से कम उम्र के हो, और जो पेशेंट में ओरल सर्जरी हुई है ऐसे पेशेंट में, और जो पेशेंट नील बाय माउथ है उन पेशेंट में देना है। जिनको जो पेशेंट खुद से केयर नहीं रख सकता, ऐसे पेशेंट में हम लोगों को माउथ केयर देनी है। ओके, व्हाट आर द पर्पजेस ऑफ माउथ केयर? टू मेंटेन द हाइजीन ऑफ माउथ, जैसे कि टूथ, टंग एंड ओरल म्यूकोजा क्लीन करने के लिए। ठीक है, टू क्लीन द माउथ ऑफ फूड पार्टिकल्स, प्लेक्स एंड बैक्टीरिया। माउथ को फ्री करना है, किससे? जो पार्टिकल्स है, जो फूड पार्टिकल्स है और बैक्टीरिया से फ्री करने के लिए हम लोगों को ये सब करना है। टू एलिवेट द डिस्कम्फर्ट रिजल्टिंग अनप्लीजेंट ऑर्डर। ओके, जो अनप्लीजेंट ऑर्डर है मुंह का आने वाला, उसको कम करने के लिए हम लोगों को माउथ केयर देना है। टू प्रिवेंट द सोर्स, कैरीज एंड इन्फेक्शन ऑफ द ओरल टिश्यूज। जो ओरल टिश्यूज का इन्फेक्शन है वो प्रिवेंट करने के लिए हम लोगों को माउथ केयर देना है। Then to enhance the well-being and comfort of the patient and stimulate the appetite. पेशेंट को अच्छे से भूख लगती है जब भी उसका ओरल कैविटी अच्छे से क्लीन रहेगा। ओके, उनको अच्छा क्लीन फील हो जाता है जब भी आप उनके अच्छे से हाइजीन ले लो। ठीक है, सो दीज आर द पर्पजेस ऑफ ओरल हाइजीन। तो ओरल हाइजीन में अलग अलग सॉल्यूशंस यूज़ करते हैं। अलग अलग सॉल्यूशंस क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट यूज़ करते हैं, KMnO4 5000 1:5000, ओके, और 1:6000, ये प्रोपोर्शन में पोटेशियम परमैंगनेट यूज़ करते हैं। और सेकेंड सॉल्यूशन इज हाइड्रोजन परऑक्साइड भी यूज़ कर सकते हैं 1:8, ओके, 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 पार्ट ऑफ वाटर।
देन सोडियम क्लोराइड मतलब नमक का यूज करना, जैसे कि 1 टीस्पून ऑफ नमक इन 1 पाइंट मेजर। ओके, 1 पाइंट मेजर में 1 टीस्पून ऑफ स्पून फुल ऑफ सोडियम क्लोराइड यूज कर सकते हो। और नेक्स्ट इज द लेमन जूस। लेमन जूस भी यूज कर सकते हो, जैसे कि 2 टीस्पून ऑफ लेमन जूस इन कप ऑफ वाटर। ओके, ये सब जो आपको मेजरिंग लेना है, और ये सब सॉल्यूशन यूज कर सकते हो वाइल केयरिंग ऑफ माउथ। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसीजर इज बेड बाथ। Bed bath. Why? What is the bed bath? Bed bath is given to the patient who is confined to bed and is not physically and mentally capable to self care। जो फिजिकली और मेंटली कैपेबल नहीं है सेल्फ केयर लेने के लिए, और जो बेड रिडन है, ऐसे पेशेंट को जो केयर देते हैं, स्पंजिंग करते हैं, उसको क्या बोलेंगे? बेड बाथ। ओके, so why it should be necessary? What are the purposes of bed bath? To clean the body, to stimulate the circulation, to produce the feeling of well-being, then to prevent the bad odor, to improve the self-esteem, to promote the relaxation and comfort, to provide active and passive exercise of the patient, to relieve fatigue and induce sleep, and to clean इंक्रीज द एलिमिनेशन थ्रू द स्किन। जो स्किन है, स्किन का पार्ट अब हमने अच्छे से क्लीन किया तो क्या होगा? एलिमिनेशन जो स्किन का पार्ट है वो अच्छे से हो जाएगा, पेशेंट को स्लीप अच्छे से आ जाएगी। ओके, पेशेंट को अच्छा लगेगा, सेफ एंड कंफर्टेबल रहेगा, क्लीन रहेगा, एक्टिव एंड पैसिव एक्सरसाइज हो सकती है पेशेंट की। ओके, जो स्टिमुलेट द सर्कुलेशन, पेशेंट का सर्कुलेशन है, बॉडी सर्कुलेशन, वो अच्छा हो सकता है। ओके, दिस ऑल आर द पर्पजेस ऑफ बेड बाथ। ओके, बेड बाथ के ये सारे पर्पजेस है। जनरल इंस्ट्रक्शंस व्हाइल टेकिंग गिविंग द बेड बाथ। प्राइवेसी शुड बी मेंटेन। Okay, during giving a bed bath, privacy should be maintained. Avoid giving bath immediately after meals। Okay, खाना खाने के बाद बेड बाथ नहीं देने चाहिए। अवॉइड ओवर एक्सपोजर ऑफ द पेशेंट। ज़्यादा एक्सपोज नहीं करना चाहिए पेशेंट को, जैसे कि पहले फेस को क्लीन करना है, देन चेस्ट पार्ट, देन एब्डोमिनल पार्ट, वैसे वैसे ही पेशेंट को एक्सपोज करना है। ओके, देन मेंटेन द प्रॉपर बॉडी मैकेनिक्स। maintain the proper body mechanics while during the this procedure। ओके, जो नर्सिंग बॉडी मैकेनिक्स है वो अच्छे से यूज करना है ड्यूरिंग द प्रोसीजर। देन क्लीनिंग इज डन फ्रॉम क्लीनेस्ट टू लेसर क्लीन एरिया, जैसे कि हेड से लेके पाँव तक। ओके, जो ज़्यादा कम क्लीन पार्ट है उस मतलब जो क्लीनेस्ट पार्ट है, मतलब ये मुंह का पार्ट, उधर ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे नहीं रहेंगे, पर फूड के साइड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा रहेंगे। सो फर्स्ट क्लीन द अपर पार्ट, देन क्लीन द लोअर पार्ट। ओके, प्रिवेंट द वेटिंग ऑफ द बेडशीट ड्यूरिंग द गिविंग बेड बाथ। प्रिवेंट द वेटिंग ऑफ बेडशीट, यूज द रबर शीट। ओके, रबर शीट का यूज करना है। टेम्परेचर ऑफ द वाटर शुड बी मेंटेन एज पर पेशेंट्स एडवाइस। ओके, पेशेंट को जैसे लगता है वैसे इसका टेम्परेचर, वाटर का टेम्परेचर रहना चाहिए। क्लीन फर्दर साइड ऑफ द एक्सट्रीमिटी, जैसे कि ऐसे आना है उल्टा। ठीक है, नेक्स्ट इज द बैक केयर। बैक केयर, what is mean by back care? Back care is the procedure of cleaning and massaging of the individual back, uh, cleaning and massaging of the back। Okay, what are the purposes? To prevent the bed sore, to stimulate circulation, to detect early signs of bed sore, to relieve the pressure from the pressure point, to keep the skin clean and dry, refresh the patient and relieve the fatigue, to enhance sleep, to improve the sense of well-being। बैक केयर क्यों देना चाहिए? बेड सोर न हो इसके लिए हम लोग बैक केयर देते हैं, पेशेंट का पोजीशन चेंज करने के लिए देते हैं, पेशेंट को स्लीप इंड्यूस होने के लिए। ओके, पेशेंट को अच्छा लगने के लिए, रिफ्रेश लगने के लिए हम लोग, पेशेंट का फटिक जाने के लिए हम लोग बैक केयर और मसाजिंग करते हैं। ठीक है, देन जनरल व्हाट आर द जो अलग अलग पॉइंट्स हैं, प्रेशर पॉइंट्स
इन अलग अलग पोजीशन, जैसे कि लेफ्ट लैटरल पोजीशन में अलग प्रेशर पॉइंट्स रहेंगे, सुपाइन पोजीशन में अलग प्रेशर पॉइंट्स रहेंगे, ओके, और प्रोन पोजीशन में प्रेशर पॉइंट्स अलग रहेंगे। जो बॉडी प्रोमिनेंस है वहाँ पे प्रेशर सोर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सो अलग अलग पोजीशन में अलग अलग प्रेशर पॉइंट्स है, ओके, जो कि मैंने पहले के लेक्चर में सिखाया है। दिस इज द रिवाइज लेक्चर फॉर यू, ओके। सो जो पोनी प्रोमिनेंस है वहाँ पे प्रेशर पॉइंट्स और प्रेशर सोर्स ज़्यादातर हो जाते हैं, ठीक है। सो इस ये जो बैक केयर देते हैं, बैक केयर मसाजिंग के अलग अलग टाइप्स है, स्टेप्स है, ओके, जैसे कि एफ्लूराज लाइक अ फैन लाइक स्ट्रक्चर, ओके, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, फ्रॉम सैक्रल रीजन टू द शोल्डर, हम लोगों को फैन लाइक स्ट्रक्चर से ऐसे फ्लोराज करके जाना है, ठीक है। देन हर एक स्टेप 5 to 6 टाइम्स, 4 to 5 टाइम्स करना है आपको, ओके। सो फर्स्ट स्टेप इज एफ्लूराज, देन पेट्रिसेज। पेट्रिसेज ये पेट्रिसेज मतलब हमारे जो फिंगर्स है उनसे बॉडी को पूरा ऐसे प्रेशर देके फ्रॉम सैक्रल रीजन टू अपर शोल्डर रीजन तक जाना है आपको, ओके। सो पेट्रिसाज मतलब पेशेंट को ऐसे फिंगर्स से आपको मसाज देना है, ऐसे 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 करके ऊपर तक जाना है। हर एक स्टेप 4 to 5 टाइम्स करना है आपको। सेकेंड स्टेप आपको मालूम है पेट्रिसाज। थर्ड स्टेप क्या है? नीडिंग। नीडिंग मतलब जो थंब है उससे आप लोगों को सर्कुलर मोशन में जो वर्टिब्रल कॉलम है वहाँ से ऊपर तक आपको नीडिंग करना है, ओके। जो फिंगर्स का ये पार्ट है वो यूज़ करना है और दिस पार्ट इज ऑल्सो यूज, ओके। ये यहाँ से नीड करके जाना है राउंड शेप में, और यहाँ से क्या करना है, थंब से भी आपको मसाज देके जाना है और यहाँ से नीडिंग करते जाना है, ओके, नीडिंग। देन टैपोटमेंट। टैपोटमेंट मतलब जो हम लोगों को पाम का यूज करना है, टैपोटमेंट करके दे जाना है, ओके। टैपोटमेंट फ्रॉम सैक्रल रीजन टू द शोल्डर रीजन, ओके। सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ बैक केयर, ओके। बैक केयर के कौन से स्टेप्स है? एफ्लूराज है, पेट्रिसाज है, देन नीडिंग है, टैपोटमेंट है, ओके। दीज आर द, और हैकिंग भी होता है, ओके। ये मुट्ठी से ऐसे ऐसे मारते भी जाते हैं, ओके। सो दीज आर द बैक केयर एक्सरसाइज, स्टेप्स ऑफ बैक केयर एक्सरसाइज, ओके। सो ये सब स्टेप्स हैं। नेक्स्ट इज द बेड सोर। बेड सोर क्यों होता है? how it should be how it is prevented? What are the causes of pressure sore when there is a lump and creases in the bed? जब भी आपके जो हॉस्पिटल बेड है, कॉटन के बेड्स रहते हैं, वहाँ उनमें क्या होता है, लंप और क्रेसेस आ जाते हैं, तो उनका प्रेशर शरीर पे गिर जाता है और प्रेशर सोर्स हो जाते हैं। देन इनकरेक्ट पोजिशनिंग ऑफ द बॉडी, पेशेंट की बॉडी पोजिशन इनकरेक्ट रखेगी तो देन हम लोग इनफ्रिक्वेंटली चेंजिंग ऑफ पोजिशन, पेशेंट कंटिन्यू ऐसे सुपाइन पोजीशन में पड़ा है तो वैसे ही हम लोग पूरा दिन भर वैसे ही रखेंगे तो प्रेशर सोर होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ओके। हाउ इट शुड बी प्रिवेंटेड? कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? आइडेंटिफाई द पेशेंट हु आर प्रोन टू गेट द बेड सोर, प्रेशर सोर, जैसे कि बेड रिडन पेशेंट है, अनकॉन्शियस पेशेंट है, जिनको फ्रैक्चर हुआ है, जिनको फ्रिक्शन ट्रैक्शन लगाया है, ऐसे पेशेंट को, और जिनको स्पाइन सर्जरी हुआ है, वैसे ये टाइप के पेशेंट में ये प्रेशर सोर्स होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ओके। डेली एग्जामिनेशन ऑफ द स्किन ऑफ दिस पेशेंट, ओके। सो ये ऐसे पेशेंट जो खुद से पोजीशन चेंज नहीं कर सकता, ऐसे पेशेंट में हम लोगों को डेली चेक करना है, ओके, बैक केयर देना है, और एक 2 आवरली चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द पेशेंट, यूज 2 आवरly change the position, use bed cradle to take off the weight of the linen, then lubricate the skin of the patient to prevent the cracking, protect the damage of the skin from urine feces। जो पेशेंट को लूज मोशन और कंटिन्यू यूरिनेशन हो रहा है तो इनसे प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी आपको सॉल्व करना है, जैसे कि कैथेटराइज करना, पेशेंट को डायपर लगाना, ओके। उस वजह से क्या हो सकता है,
जो बेडशीट है नीचे की वो सॉइल नहीं हो सकती, वेट नहीं हो सकती और पेशेंट को बेड सोर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। मेंटेन द प्रॉपर फ्लूइड बैलेंस ऑफ द पेशेंट, मेंटेन द न्यूट्रिशनल बैलेंस ऑफ द पेशेंट, do the massaging of the pressure points, lift the patient when needed, okay, while changing the bed sheets. Bed making should be done properly without wrinkles. Use the mattresses and water mattresses, air mattresses for the bedridden patients. Maintain the personal hygiene of the patient. Prevent the friction of the body with anything on the beds, जैसे कि फूड पार्टिकल्स चद्दर में नहीं गिरने चाहिए, बेड पे नहीं गिरने चाहिए। ओके, यूज comfort device to take the weight of the patient on the pressure point. Encourage the patient to move on the bed, जैसे कि को एक्टिव पैसिव एक्सरसाइज ओके देनी चाहिए पेशेंट को। ठीक है, सो ये सब आपको प्रिवेंशन करना है फॉर टू प्रिवेंट द पेशेंट फ्रॉम बेड सोर। ओके, ये सब हमने देखा हाइजीन के बारे में। ओके, सो आज का लेक्चर हम अपना यहाँ पे ही ख़त्म होता है। हाइजीनिक नीड्स का हमने रिवाइज लेक्चर लिया है। ओके, रिवाइज लेक्चर में क्या क्या हुआ है अपना, केयर ऑफ आईज नोज एंड ईयर्स, केयर ऑफ बॉडी होल बॉडी, जैसे कि बेड बाथ देना, पेशेंट के फुट एंड नेल्स की केयर रखना, पेशेंट को बैक केयर देना, माउथ केयर देना, ये सब हमने हाइजीनिक नीड्स में देखा है। कभी कभी हेयर केयर भी दी जाती है। ओके, मोस्टली दिस इज नॉट पॉसिबल in hospitals, but sometimes they are given when patient is like a long period in the hospital, admitted in the hospital. Okay, so what are the purposes of hair care? To maintain the hair clean and healthy, to give the sense of well-being, to prevent the hair loss and promote growth, to prevent the accumulation of the dust in the hairs, to stimulate the circulation, and to observe the scalp, to prevent or treat the pediculi, एंड टू प्रिवेंट द इचिंग एंड इन्फेक्शन, जो हेयर का इन्फेक्शन है वो कम करने के लिए, जो पेडिकुलोसिस है वो कम करने के लिए, स्काल्प ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग हेयर वॉश देंगे। ठीक है, सो ये सब प्रोसीजर्स किस में आती है, हाइजीनिक नीड्स में। ओके, ये सब प्रोसीजर्स कौन कैरी करता है, स्टाफ नर्स। ओके, सो ये स्टाफ नर्स को सीखना बहुत ज़रूरी है ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ GNM नर्सिंग। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।